क्वेश्चन पढ़ के बता सकता है क्या? So just a minute. Sir, we have to find the equation to a circle touching the coordinate axis and also the line xa plus yb is equal to 1 and center lying in the first quadrant. ये लाइन है और ये सर्किल है. सर्किल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है ना. Yes, sir. तो सेंटर किस फॉर्मेट में रहेगा? Sir, center hk will be replaced by radius. Yes, and radius will also be r only. And this circle is touching this line, right? तो ये सेंटर से इस पे perpendicular distance should be same as the radius. अच्छा, तो perpendicular distance तो सर उसके मिड पॉइंट होंगे ना, जैसे a by 2, b by 2. perpendicular point नहीं, distance. perpendicular distance एक पॉइंट का distance from a line. अगर ये लाइन है x1, y1 और ये पॉइंट है x1, y1, लाइन है ax plus by plus c is equal to 0, तो ये perpendicular distance का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. yes. So perpendicular distance from r comma r onto this मतलब ar plus br minus 1 divided by root of a square plus b square. This should be same as r. इसको सॉल्व करके r का वैल्यू मिलेगा. r का वैल्यू मिल जाएगा तो तुझे शायद इक्वेशन भी मिल जाएगा. Yes, sir. This is very very important. Perpendicular distance equals to radius जब भी tangent बोले. Thank you, sir. और किसी को कोई डाउट है क्या होमवर्क में? मेरा नॉन इंटीग्रेटेड 2 के साथ ही है ना लेक्चर अभी. तो मैंने करेक्ट ग्रुप्स में ही डाला ना लिंक. अभी पहले रॉन्ग डाल दिया था. यस, और किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी? हाँ बोल रही हो कि ना बोल रही हो? Doubt I'm saying. So you're sending the doubt, I guess. पता नहीं. Okay, other than Siddharth and Vedika, anybody else? Homework कर रहे हो कि नहीं? Have you done the homework? Attempted the homework at least? अगर होमवर्क अटेम्प्ट नहीं हुआ तो जिस ऑर्डर में होमवर्क दिया उसी ऑर्डर में सॉल्व करो. दैट विल बी बेनिफिशियल. जिस लेक्चर्स में जैसे जैसे मैंने होमवर्क दिया है. Can you hear me, sir? Now I can hear you, Vedika. Yeah, the 6th question. You had sent Okay, pictures. It Siddharth. says find the condition that the straight line cx minus by plus b square is equals to 0 may touch the circle x square plus y square is equals to ax plus by and find the point of contact. Okay. Now पहले ये लाइन करेक्ट लिखा क्या मैंने? Yes. Okay. Cx minus by plus b square equals to 0 is the line and x square plus y square equals to ax plus by is the circle. Okay. First thing what they have said is that this line is what to this circle? This is a line and this is the circle. In this question, it has been given that this line is a tangent to this circle. So what conditions should this line and this circle have in between them so that this line behaves like a tangent? What do you think? Or in simple words, what is the condition of tangency? क्या होगा? Sir, perpendicular distance should be equal to r. Yes, perpendicular distance should be equals to radius. This is the fundamental thing which everybody should know. The line और circle एक साथ आए कोई भी क्वेश्चन में तो पक्का ये तो लगेगा ही. Perpendicular distance is equals to radius. अच्छा, now perpendicular distance from where to where and radius of the circle. तो radius of the circle ढूंढना सबसे पहले easiest है. x square plus y square minus ax minus by equals to 0. Radius हो जाएगा root of g square. G square is basically minus a by 2. उसका square a square by 4 plus b square by 4. This is the radius.
should be equal to the perpendicular distance from the center. इसका center है a/2, b/2. a/2, b/2 से perpendicular distance onto this line. अभी just थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ को भी बताया था perpendicular distance from a point onto a line. वो कैसे ढूंढते हैं? Point substitute कर देंगे. Modulus of ca/2 minus b/2 भी substitute कर देंगे. b²/2 plus b² divided by root of coefficient of x whole square plus coefficient of y whole square. ऐसे करेंगे. तो this is the condition. Did you understand? Yes, I'll try. Okay. फिर point of contact भी था इस क्वेश्चन में ढूंढने के लिए. Can anybody tell me how should I find the point of contact? Sir, we can assume the point of contact be h and k and put the values in the line cx minus by, and then we can find the value of h and substitute in the second equation. We'll get quadratic, which and basically both of the quadratic have same values. Yes, basically in simple words is saying solving both equations. इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. Like y का वैल्यू इससे लेके आके मतलब I hope you're understanding Vedika. Yes, understood. Literally solve. Okay. और किसी को कोई डाउट है क्या? चलो, I know for sure that 2-3 students are solving. Gayatri, Vedika, and Siddharth. What about others? Are you guys doing the homework? Okay. अभी हम लोग एडवांस लेवल पे चले गए सर्कल्स के चैप्टर का. तो अभी तक जो होमवर्क किया वो सब बेसिक्स अज्यूम करके फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू होगा. तो आज का लेक्चर जो होगा उसका वो डीपीटी में भी नहीं आएगा. डीपीटी में पिछले लेक्चर तक आएगा. पिछले लेक्चर तक क्या किया था मैं बेसिकली फिर से फास्टली रिवाइज करूंगा. किसी को डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क. नाउ बेसिकली सर्कल्स चैप्टर में एज द नेम से सर्कल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सर्कल्स रिलेटेड सिनेरियो आएंगे और वेरियस थिंग्स पूछेंगे. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सबको आना चाहिए, सर्कल का सेंटर और रेडियस ढूंढना. एंड दे आर द फंडामेंटल्स ऑफ द चैप्टर. इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते. कोई इक्वेशन दिया है, इक्वेशन सर्कल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? x² y² का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और इसका सेंटर -g, -f होगा और रेडियस √g² + f² - c. So that is the fundamental. Other than that, do you guys remember अगर सेंटर और रेडियस दिया है तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैसे ढूंढेंगे? Yes, sir. We can find it using x minus h formula. X minus x on the whole square plus y minus y on the whole square equals to r square. This is the fundamental. So अभी to find the center and the radius, they are going to tease you that the center lies on 2 points. और दो इक्वेशन देंगे और बोल देंगे कि ये नॉर्मल का इक्वेशन है या डायमीटर का इक्वेशन है. तो नॉर्मल मतलब एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर. तो नॉर्मल क्या है तुम्हें समझ में आना चाहिए वर्ड्स. तो नॉर्मल और डायमीटर वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए. फिर रेडियस भी डायरेक्टली दिए बिना एरिया ऑफ द सर्कल वगैरह दे सकते हैं. Other than this, then we moved on to diametric form. जिसके ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चंस बने, बट स्टिल x1 y1 x2 y2 दो डायमेट्रिक एंड्स है. तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल ढूंढने के लिए देयर वाज अ मेथड x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. So this is it. Then इसके बाद then सर्कल के साथ हमने अभी तक ओनली सर्कल का इक्वेशन ढूंढ रहे थे स्टार्टिंग में. देन वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द रिलेटिविटी. नाउ सर्कल के साथ वी आर इंट्रोड्यूसिंग मोर थिंग्स. नाउ फर्स्ट थिंग दैट वी इंट्रोड्यूस्ड वाज सर्कल एंड अ पॉइंट. So how should one know if a point lies inside the circle or outside the circle? If a point lies inside a circle, then it will its distance formula would be less than radius, and outside distance formula would be greater. Did I tell you something like this? S1 less than 0. Yes, sir, you have. Yes, sir. S1 मतलब क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. हाँ, पॉइंट को सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. वो वैल्यू नेगेटिव होगा तो इनसाइड रहेगा, वो वैल्यू पॉजिटिव होगा तो आउटसाइड रहेगा. तो एंड ऑफ कोर्स इक्वल टू 0 रहेगा तो ऑन द सर्कल रहेगा. सिंपल थिंग्स. सो दिस इज द फंडामेंटल. सर्कल और पॉइंट का रिलेटिविटी ऑब्जर्व किया. इसके ऊपर हमने थोड़े टफ क्वेश्चंस भी किए थे. सर्कल और लाइन इंट्रोड्यूस किया, वो ये वाले सेगमेंट में होना चाहिए था, ऐसे करके भी क्वेश्चन किया था. तो उसमें एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ये भी यूज किया था कि लाइन के सेंटर और वो पॉइंट ऑपोजिट साइड लाई करेंगे. ऐसे चीजें भी किए थे, एक बार रिवाइज करना. तो इधर एज फार सर्कल चैप्टर इज कंसर्न्ड, पॉइंट इनसाइड आउटसाइड, तो ये समझना. तो सर्कल एंड पॉइंट का रिलेटिविटी समझा. देन उसके बाद देन वी इंट्रोड्यूस सर्कल एंड लाइन का रिलेटिविटी. सर्कल एंड लाइन. तो सर्कल एंड लाइन के पहले फर्स्ट वी हैव टैकल्ड विद इजी लाइंस, एक्सिस.
एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। तो अगर सर्किल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो कैन यू फाइंड दीज 2 पॉइंट्स? Yes, sir. जस्ट Yes, बाय sir. सॉल्विंग, पॉइंट्स ढूंढना है, कर्व्स दे रखे हैं तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे किससे सॉल्व करेंगे? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है? x minus h whole square plus y No. minus k whole square is equal to k square. अरे नहीं, कुछ भी बोल दिया। एक्स एक्सिस का सर इक्वेशन ये y पूछ रहे हो इक्वल टू आप? 0 है। यस सर, y is equal to एक्स 0. एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। हम लोग सर्किल और इसको सॉल्व करना, मतलब सर्किल के इक्वेशन में हम लोगों को सिर्फ y को 0 पुट कर देंगे। y को 0 पुट कर देंगे तो विल गेट 2x कोऑर्डिनेट्स कॉमा 0। सो दोस विल बी सिमिलरली। ऑफ कोर्स एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्शन के पॉइंट्स ढूंढना है तो हम लोग विल सॉल्व इट विद x इक्वल्स टू 0। अच्छा, अदर देन दिस, ये जो लेंथ है एक्स एक्सिस के साथ, इस लेंथ को एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं और इस लेंथ को वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के थोड़े फॉर्मूले लिखवाए थे, याद है कि नहीं? आई डोंट नो, आई जस्ट टेल इट हियर। एक्स इंटरसेप्ट इज 2 रूट g स्क्वायर माइनस c, वाई इंटरसेप्ट इज 2 रूट f स्क्वायर माइनस c। अगर इनकेस तुम लोगों ने फॉर्मूला भूल गए तो लिटरली सॉल्व कर लो, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर डिस्टेंस निकाल लो। तो सर्किल एंड एक्सिस का इंट्रोडक्शन किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग, सर्किल एंड लाइन। सर्किल एंड लाइन मतलब ऑफ कोर्स एक सर्किल है और एक लाइन है। सर्किल एंड लाइन है तो ये लाइन या तो सर्किल को टच करे बिना, कट करे बिना जा सकता है, या तो वो टच करके भी जा सकता है। तो कैसे पता चलेगा कट करके जाएगा या टच करके जाएगा? that is introduced using the सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टू द लाइन ढूंढेंगे। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे टेंजेंसी। सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग। आज के डाउट्स भी वही थे, लाइन दे दिया है, टेंजेंट है बोल दिया तो यू हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन। सो दिस इज इट। नाउ बेसिकली नाउ उसके बाद इसके मिक्सचर्स, मोर मिक्सचर मतलब इनके साथ अभी फिर आगे हमने ये किया था कि सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट है तो टेंजेंट कैसे ढूंढना है। सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट है p x1, y1, तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे? किसी को याद है? सर्किल के ऊपर पॉइंट दिया है तो टेंजेंट का इक्वेशन। ओके, सर्किल के ऊपर पॉइंट दिया है तो एक टेंजेंट और एक नॉर्मल, ये दोनों ढूंढना आना चाहिए। नॉर्मल इज द इजी पार्ट। नॉर्मल मतलब पी को और सेंटर को ज्वाइन करने वाला। तो पीसी, इक्वेशन ऑफ पीसी जो है वो ढूंढने के लिए हमें सी भी पता है, पी भी पता है, तो 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढ सकते हो, स्लोप मिलेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। टेंजेंट ढूंढने के लिए वेराइटी ऑफ मेथड से वन मेथड व्हिच आई वाज स्ट्रेसिंग ऑन यू टू रिमेंबर इज t इज इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब बेसिकली ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको s बुलाएंगे तो t होता है x(x1), y स्क्वायर को लिखेंगे y(y1). ये करवाया क्या मैंने एक बार भी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g टाइम्स x प्लस f1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल 0। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है। फिर इसका एवोल्यूशन ये था कि और एक था जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अगर एक सर्किल है तो यहाँ पे पॉइंट ऑन द सर्किल दे रखा है, पॉइंट ऑन द सर्किल दे रखा है तो ये फॉर्म यूज करेंगे। अगर पॉइंट नहीं दिया बल्कि स्लोप दिया है, स्लोप m दिया है, तो भी इक्वेशन ऑफ द सर्किल का एक फॉर्मूला है। स्लोप m दिया है तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल टेंजेंट का इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस माइनस r√1 प्लस m स्क्वायर। ये था तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। उसके बाद पॉइंट और लाइन और सर्किल तीनों को मिक्स करके इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। पॉइंट, लाइन, इन सबको मिक्स करके एज एन ये सर्किल है और एक पॉइंट P है, ये सेंटर C मान लेते, ये हो गया टेंजेंट। सबसे पहले ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ के हैं, वो पता है ना? यस सर। यस सर। ये पॉइंट A है मान लेते, ये पॉइंट B मान लेते। तो अभी PA का लेंथ कैसे ढूंढेंगे, विच इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ टेंजेंट? We have a formula. सर डिस्टेंस फॉर्मूला। रूट s1 इज द फॉर्मूला वेदिका, दैट इज करेक्ट। अगर फॉर्मूला बाय चांस भूल गए तो सेंटर और P को ज्वाइन करो, हर बार डायग्राम बना लो। सर पाइथागोरस से भी तो हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम, यस। CA रेडियस रहेगा, CP जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। अभी नॉट ओनली दैट, इसमें और भी चीज भी ढूंढ सकते हो। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो तुम लोग ऐसे tan थीटा या कुछ अप्लाई कर सकते हो। tan थीटा अप्लाई करोगे तो वो r/√s1 आएगा, r/√s1 आएगा, तो उसका डबल हो जाएगा एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, उसका डबल हो जाएगा एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो ऐसे चीजें तुम लोगों को अभी एग्जाम में डायग्राम बना के सोचना पड़ेगा, एरिया ढूंढे, ऐसे एंगल्स ढूंढे वगैरह, तो कामली सर करो, जरूर हो जाएंगे क्वेश्चंस। नाउ
इतना हमने पढ़ा था मेनली, इसके अलावा ऑफ कोर्स छोटी मोटी चीजें और भी पढ़ी थी, बट स्टिल वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ द रिमेनिंग चैप्टर. डिड आई आल्सो टेल यू इक्वेशन ऑफ अ chord with given midpoint? No, sir, not probably. Probably No, sir. not. It's a very simple concept. We'll start with that today. Equation of a Sir, you have chord. just Sir, तो आज introduced का जो the main concept heading होगा वो director क्या है? circle. मेन हेडिंग मतलब मल्टीपल मेन हेडिंग्स है, इसका फर्स्ट मेन हेडिंग ये है, क्या रहेगा फिर? ये लिखा है ना बोर्ड पे, इक्वेशन ऑफ अ chord with given midpoint. इक्वेशन ऑफ अ chord with given midpoint. तो अभी सर्किल है, हमें इक्वेशन ऑफ द chord ढूंढना है. chord ढूंढना है, सर्किल के बहुत सारे chords रहेंगे, इनफाइनेटली मेनी chords है. अभी एक ऐसा chord का इक्वेशन ढूंढना है, ऐसे chord का इक्वेशन ढूंढना है जिसका मिड पॉइंट दे रखा है, जिसका मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है. तो एनी थॉट्स, ये इस इक्वेशन कैसे ढूंढना है? इस ये मिड पॉइंट दे रखा है, लेट मी कॉल इट एज m. ये पॉइंट m दे रखा है और सर्किल का इक्वेशन भी दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ढूंढना है. एनी थॉट प्रोसेस? सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कुछ आई एम थिंकिंग बट आई डोंट नो. Okay, you have spoken few words, so if you can just think more. Sir, we can find the Okay, chord sir. length. Chord length, okay. इसी बात पे chord length ढूंढ लेते हैं. Chord length अगर ढूंढना है क्रिश, तो what he is saying is, if I know C, if I drop a perpendicular distance, just for my information, how should I find the perpendicular distance? Sir, we know the midpoint and the center also, so we can You apply know the distance midpoint and formula. the center, and then we can join them. Yes. और in case अगर हमें लाइन का इक्वेशन पता है तो भी P ढूंढ सकते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला. और ये R है, तो ये लेंथ कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से? R R square square minus minus P P square. square. Yes. So the length of the chord can be summarized as twice of root R square minus P square. Is that clear? Yes. Okay, we'll come back to that in some time. यहाँ पे the question is to find equation of this line. Equation of this line. तो हर बार सोचो equation of a line के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? Equation of a line के लिए Slope. yes and Point. कोई भी एक point. 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 तो इस क्वेश्चन में क्या क्या मिला है, क्या क्या पता है हमें? Point पता है और slope पॉइंट नहीं तो दिया. ऑलरेडी पता है, पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, m गिवन है. और स्लोप नहीं ढूंढ सकते क्या इस लाइन का? इस लाइन का स्लोप कैसे ढूंढेंगे? इस लाइन का स्लोप सेंटर और पॉइंट को ज्वाइन, मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो cm का स्लोप मिलेगा क्या? और सर वो उससे परपेंडिकुलर होगा. वो उससे परपेंडिकुलर हाँ, रहेगा. सर. cm का स्लोप मिल जाएगा y2 minus y1 by x2 minus x1 फॉर्मूले से. फिर उसका परपेंडिकुलर स्लोप मतलब यू कैन यूज m1 m2 as -1 और फिर लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. क्वेश्चन समझा ना? हाँ सर. Okay, now I want to tell that is one way to find the equation of a line, which I'll make you solve it in a with an example. There is a formula also. Equation of a line with given midpoint. Equation of a line with given midpoint is given as T is equals to S1. T is equals to S1. If you can try to remember, that will be great, because this formula will occur in 4 chapters. One of them is circles. आगे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में भी सेम फॉर्मूला है. T is equals to S1. पहले इस फॉर्मूले को लिख लो. I'll tell you how to use it. First, this is the theory, right? Now, equation of a chord with given midpoint is T is equals to S1. I want to give an example. In the meantime, note करके ये भी लिख लो. Length of the chord. Length of chord. हो गया तो बताना लिखे. सर ये फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ अ chord के लिए है क्या, जो आपने लिखा है T is equal to Yes, S1? correct. ये हो गया लिख के सबका?
एक सेकंड सर, नहीं वो लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया ओके बस. first example I'll solve it, second example you guys do it. सर हो गया. Right. Now question ये है, read on, find equation of a chord, find equation of a chord of the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0. X square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0 plus 1 equals to 0, whose midpoint is 1 minute guys, ठीक है, let me make it tough only, 3/2 comma 3/2 comma 5/2, whose midpoint is 3/2 comma 5/2. Okay. Let me solve this question for you. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना. ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं. सबसे पहले अच्छे से समझो क्वेश्चन क्या है कि ये कॉर्ड का ये सर्किल है. ये सर्किल बोलते क्या क्या चीजें पता चल गई हमें. Center radius सेंटर क्या है radius. जल्दी बताओ. 1 2. या इतना डाउटफुल क्या है. 1,2. रेडियस भी ढूंढ सकते हो क्या. Yes sir, under root of ठीक g है. square plus s square minus c. यस ठीक है. नाउ 3/2 comma 5/2 कहीं तो पॉइंट है. 3/2 comma 5/2 कहीं तो पॉइंट है. ढूंढना हमें ये है इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड विद 3/2 comma 5/2 एज मिड पॉइंट. मतलब हमें ये कॉर्ड का इक्वेशन ढूंढना है. ये कॉर्ड का इक्वेशन ढूंढना है. तो ये पॉइंट जो है वो हमें पता है 3/2 comma 5/2. सो मेथड वन ऐसा है. तो पहले इनका स्लोप ढूंढो. इनका स्लोप ठीक है. स्लोप इज इक्वल्स टू 5/2 minus 2 divided by 3/2 minus 1. सिंपल सी बात है. 5/2 minus 2 हाफ बाय हाफ. स्लोप 1 आ गया. इसका स्लोप 1 आ गया तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगा फिर. स्लोप ऑफ द Minus कॉर्ड 1. slope of the chord will become -1. Did everybody understand this? I hope so. Then equation is given as y minus y1. y1 कौन सा लेना चाहिए. 2 लेना चाहिए कि 5/2 लेना चाहिए. 5/2. Sir 5/2. 5/2 because the chord का equation 5 minus 5/2 equals to -1 into x minus 5/2. So this is the answer. This is the answer. Okay. जल्दी method 1 लिख लो. I want to tell a second method also. Method 1 clear है ना. It's not that tough also. It's very simple to remember. लाइन ढूंढना है तो स्लोप और पॉइंट को टारगेट करो. सर्किल ढूंढना है तो सेंटर और रेडियस को टारगेट करो. कोई भी क्वेश्चन हो. यूजुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे वैसे वैसे इंफॉर्मेशन आता रहेगा. जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे वैसे वैसे डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो. या फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, वापस से पढ़ो, दो दो वर्ड पढ़ के डायग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश करो. Do let me know once you're done writing. सर आपने x minus 5/2 लिख दिया भूल से. 3/2 आएगा. Oh, thank you. Thanks a lot. नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग कोशिश करेंगे ये सर्कल्स खत्म करने का. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेंथी क्वेश्चंस आएंगे. बहुत पेशेंटली सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें. Are you guys done? Yes, sir, done. Okay. The second method which I was actually promoting because it will be used in the further chapters. This is method 1 is used as a backup option commonly.
मेथड 2 फॉर्मूला सेज t is equals to s1. इस क्वेश्चन में टफ लग सकता है बट स्टिल t is equals to s1. t is equals to x s1 मतलब सबसे पहले s1 समझ लो. s1 मतलब 3/2 5/2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. लाइक 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस 2 into 3/2 3 minus 4 into 5/2 plus 1. Okay, this is the left hand side. कितना हो गया 9 plus 24/4 6 7. सर 1 सेकंड, -3 -10 और +1 किधर से आया सर वो? 2 into -2 into 3/2 minus 4 into 5/2 plus 1. इस पॉइंट इस सर्किल के इक्वेशन में पॉइंट डाल दिया. ओके ओके, गॉट इट सर. ठीक है. ऑल्सो जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन, इस राइट हैंड साइड का रूट लेते तो क्या मिलता हमें? लेंथ ऑफ द टेंजेंट मिलता. ठीक है. और राइट हैंड साइड हमें रूट यहाँ -6 आया. डज इट मेक सेंस कि s1 का वैल्यू -6 है, s1 का वैल्यू नेगेटिव है? इज इट मेकिंग सेंस टू यू? नेगेटिव क्या क्यों सर? है? Why is the value of s1 coming out to be negative here? Sir, because the point is inside the circle. Okay. आधे लोग सोते रहते हैं लगता है क्लास में. लेफ्ट हैंड से t मतलब x into x1 x into 5/2 plus y into y1 y into 5/2 minus 2x को क्या लिखते हैं याद है क्या? सर x plus x1. थैंक यू. x plus x1 और 4y को लिखेंगे 2 times y plus 5/2 plus 1. बस इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो तो डायरेक्टली हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा. मेथड 2 भी समझाना. मेथड 1 स्लोप और पॉइंट से स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया. मेथड 2 t equals to s1 फॉर्मूला यूज किया. लेट मी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले तुम लोग ये कॉपी कर लो फास्टली. एक क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा. तो सर बेसिकली बस टैंजेंट का जो इक्वेशन था बस वैसे ही, मतलब वो स्लोप पॉइंट फॉर्म से थे, बट एक्सेप्ट यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द पॉइंट इन दिस. तेरा क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? नहीं, क्वेश्चन है जस्ट लाइक आस्किंग कि इट्स लाइक अ टैंजेंट का इक्वेशन ओनली ऑलमोस्ट, बट लाइक टेंजेंट के इक्वेशन में t equals to 0 होता है. हाँ सर वही. क्योंकि वैसे भी पॉइंट उसके ऊपर रहेगा तो अंडरस्टैंड दैट s1 0 हो जाएगा. ओके सर. और फिर सर देन दिस वैल्यूज इज रिटन 9/4 plus 25/4 ऑल दैट. सर ये किसके लिए है सर? That is not equation because like -6 is होता. See, this is an expression. T is an expression. S1 is an expression. If you equate both of them, then you get equation of a chord. Oh, okay, so got it. See, T and S1 are expressions, guys. Expressions. T equals to 0. S gives me tangent. S1 gives me information if the point is lying inside or on the circle. Okay, and if I equate t and s1, then I get the equation of the chord. मतलब t and s1 are just expressions which are commonly occurring in many places, so we have started calling them in that manner. x(x1) y(y1) वाला वो पूरे को t करके बुला देते हैं. हर बार कौन एक्सपेंड करके बताएगा? Okay, एक क्वेश्चन करना just for my satisfaction. I'll just understand who is actually following and all. Right on. Find the equation of the chord. Find the equation of the chord of the circle. Find the equation of the chord of the circle. Find the equation of the chord of the circle. X square plus y square equals to 100. X square plus y square equals to 100. Whose midpoint is 5,6. Whose midpoint is 5,6. Find the equation of the chord of the circle whose midpoint is 5,6. Now I want the answer. Do text me the answer. 35 participants. Let me just check how many of you genuinely answer. सबके पास माइक तो है ही, इतने दिन हो गए.
एक एक को पूछता हूँ क्वेश्चन का आंसर, आंसर आ गया तो भेज दो, अच्छी बात है, नहीं आया तो आई आस्क ईच वन ऑफ यू, जो भी नहीं बोलेगा आई जस्ट किक यू आउट ऑफ द लेक्चर फॉर सम टाइम। इथन वो कांस्टेंट का वैल्यू गलत है। सिद्धार्थ इज राइट, सोनल इज राइट, गुड वन सोनल। सर अगर इस टाइप की इजी क्वेश्चंस पूछे जाए तो सर इसे तो मेथड 1 से ही बनाना मतलब ज्यादा डुएबल रहेगा ना, क्योंकि फास्टली हो जा रहे हैं। सर्किल के लिए गोई भी चलेगा, आगे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के लिए ना इतना सिमेट्री नहीं रहता कि परपेंडिकुलर बनाओ और स्लोप m1 m2 -1, ऐसा नहीं चलता है उनको, उनके लिए, तो इसीलिए तब t इक्वल टू s1 बेनिफिशियल लगेगा। ओके सर। Okay, Krish is also correct. That's right, Krish. I hope you got your mistake. सर मैं करेक्ट हो गया रॉन्ग? Oh, sorry, Ethan is wrong. Krish is correct. I'm sorry, Ethan से confused हो गया. Ethan is wrong. Ethan, is the equation of the chord t equal to 0? वेदिका, that is correct यार। राइट हैंड साइड का नंबर गलत आया, तूने एडिशन गड़बड़ कर दिया। दो जो जिन्होंने कर लिया, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, गिव इट ए ट्राई। दैट्स राइट वेदिका, गिव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन ए ट्राई। गायत्री आंसर भेजो जल्दी। ओके, नाउ ईच वन ऑफ यू। आरव, आर यू देयर? Yes, sir. What have you done in this sum? Sir, I used the same thing which we did in last sum. Like, can you elaborate? First we get the center, then we find slope. What is the and center? Center I'm getting Okay, keep thinking, I'll ask you again. Ayush, are you there? Yes, sir. What is the center of the circle? So 1,1. 1,1 किसने बोला, कैसे आया? सर मुझे वो इक्वेशन से ऐसा लग रहा था, कैसे क्योंकि लग रहा था, कैसे 2gx ख्वाब में और आया? 2gy का दिया नहीं है ना सर। 2g नहीं दिया तो 1 ले लेगा। सो सॉरी, 0 ना? हाँ, फिर ये Origin. क्या बात हुई? हाँ सर, सॉरी सर, मैंने 1 लेके सॉल्व किया। ऑफ कोर्स गलत होगा। हाँ सर, सॉरी। अभी वापस जल्दी कर। यस सर। अक्षत, यस सर। कैसे किया? सर सेंटर ऑफ द सर्कल मिला 0,0, 0,0, यस, कैरी फॉरवर्ड हुआ लॉजिक। फिर डिस्टेंस फार्मूला से वो मिड पॉइंट तो दिया है, तो डिस्टेंस हाँ। फार्मूला से उसका डिस्टेंस पी का फॉर्मूला ढूंढ वैल्यू लिया। मिल गया। डिस्टेंस फॉर्मूले से पी का वैल्यू मिल गया, कैसे?
सी और एम का डिस्टेंस मिल गया, सी एम। सीएम का डिस्टेंस मिल गया, हाँ मैंने उसको पी लिया वैसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस ही मिला, पॉइंट पी कहाँ मिला? अरे सर मैंने सी एम को पी ऐसे अज्यूम अच्छा किया। अच्छा, वो स्मॉल पी, यस पी हाँ मिल यस गया, सर। यस। तो क्या? बाद में वो लास्ट सम में जो किया वही इक्वेशन ऑफ द क्या किया? देख 2 मिनट देख, एक्स। 2 मिनट देख, वापस से बता। आरव वापस से बताएगा क्या? हाँ सर। क्या कहाँ तक पहुंचा फिर? सेंटर मिला कि नहीं सर्किल का? सर आप हाँ एक बार प्लीज चैट बॉक्स चेक कर लोगे? आंसर क्या, मैं चेक करता हूँ सिद्धार्थ। वही वैसे तो है इजी सही। इन द मीन टाइम सिद्धार्थ, सिंस तेरा ये क्वेश्चन हो गया, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट भी ढूंढ। ओके सर। हाँ आरव, क्या कैसे करना है ये क्वेश्चन? so after getting the distance and sorry the midpoint we can and slope we can find the equation. डिड यू फाइंड द स्लोप? Yeah, 5 slope will be 6/5. हाँ, इज दैट द स्लोप ऑफ द कॉर्ड आल्सो? स्लोप ऑफ व्हाट इज 6/5? Slope of distance. Slope of distance. Okay, let us call this line. Slope of this line. Slope of this line is 6/5. That you found out by using y2 minus y1 by x2 minus x1. But what is our purpose? What do we need to find? इसके आगे क्या करेंगे अक्षत? सर स्लोप ऑफ कॉर्ड और इसका स्लोप उसका प्रोडक्ट -1 होगा। हाँ, तो 6/5 इंटू उसका स्लोप -1 होगा। तो इसका स्लोप कितना हो गया फिर m? सर मैं बोलूं? हाँ, सर -5/6। -5/6, राइट। फिर आंसर बताना जल्दी। आरव, सर कैन यू टेल मी नाउ? ये समझा ना, 6/5 करके उसका -5/6 किया। Did you get this or not? Yes sir. Then what to do? Then y minus 6 is equal to -1. -1 नहीं, Sorry sir. -5/6 x minus 6. x minus 5. 5. That's it. This will be the answer. You just have to be very fast with this. जल्दी करो आंसर। इथन 0 कैसे आया इक्वल टू? कैसे किया इथन? हाँ कैसे, यही तो है मेथड बोर्ड पे। तो ये सबसे पहले 6 into x कैसे आया? तूने स्लोप -5/6 लिया ही नहीं क्या? स्लोप सॉरी सर, हाँ मैंने उल्टा कर अरे दिया। यार, क्या हर ओके, क्वेश्चन गलत करेगा क्या? सॉरी सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में जल्दी करना। ओके क्रिश, तेरा और सिद्धार्थ का आंसर डिफरेंट है। सो क्रिश, क्या किया पहले? सर मैंने जो लेंथ के लिए जो फॉर्मूला लेंथ ऑफ कॉर्ड का Correct. 2 Correct. r -1 आर r कितना आ रहा है? -3। आर कितना आ रहा है? सर रेडियस मेरा है √16, मतलब 4 राइट। हाँ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है? 4/√5। कैसे माइनस? हाँ 4/√5, करेक्ट करेक्ट, 4/√5। तो 2√16 - 16/5 ना? अरे सर हाँ, वो करना वही है, शिट। ओके सर आपने जो वो मिड पॉइंट वाला बोला ना, सर मेरा उसमें मतलब एल्गोरिदम डेवलप हो गया, बस कैलकुलेशन बाकी है। ओके। इन द मीन टाइम सिद्धार्थ, तेरा √34 आएगा कि 32 आएगा? कैन यू चेक? सर इट इज √32 बाय मिस्टेक आई हैव ओके रिटन। ओके। सर वो मतलब एल्गोरिदम बताओ क्या कि 32 भी, आई एम नॉट आफ्टरवर्ड। श्योर यार इफ इट इज राइट। वो बताना थोड़ी देर में। तो ओके एक सर। बार लेंथ एक बार चेक करना। यस सर, देयर माइट बी अ कैलकुलेशन एरर। सोनल नहीं यार, बट कैसे किया सर सोनल? 2√64/5 है क्या आंसर?
हाँ रूट 64 कौन लिखता है, करना फिर, मुझे भी सही वही आ रहा था। कैसे किया सोनल? सर मैंने सेंटर से डिस्टेंस निकाली कितना आया? कॉर्ड की, कितना आया? 4/√5 करेक्ट है। फिर और फॉर्मूला, हाँ रेडियस 4 आया था। हाँ, फिर फॉर्मूला में क्या रख रूट के ऑफ क्या आएगा? √16 + 16/5 माइनस की प्लस? प्लस। क्यों? सर सर डिस्टेंस तो 16/√5 पॉजिटिव रहता है ना, नेगेटिव डिस्टेंस रूट तो ऑफ नहीं। पाइथागोरस थ्योरम में रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगा यार। ओके सर। सर आंसर आ गया 16/√5। ये सर सर मैंने वही पहले आंसर 16 वही बाई रूट किया 5। था, फिर मुझे लगा कि मैंने डिस्टेंस क्यों नेगेटिव लिया, तो मैंने उसे कट कर दिया। अरे नहीं, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पॉजिटिव ही निकल जाएगा, आर बड़ा रहता है पी से तो। ओके, others, this is the question, 2x plus y minus 3 is equals to 0 is the chord. This time the chord का equation has already been given. तो chord का equation already given है, ये length of the chord पूछा है। length of the chord, इसी question को find intercept made by this line on this circle, ऐसे भी पूछते हैं। It is also the same question. Find the intercept made by this line on this circle also means that it is the same question. I am not giving another question. Now think for it. ये लेंथ ढूंढना है इस बार। पिछला क्वेश्चन इक्वेशन ढूंढना था, इस क्वेश्चन में लेंथ ढूंढना है। Okay, I'll just wait for 2 minutes and I'll ask few students again. You can't get this, matlab, what do you mean? I'm not able to understand. Which part? Which word? I understood I got the 4 of the radius. I can't solve it further. हाँ, you are unable to solve it, you mean to say? Yeah. You can't solve it मतलब क्या, हाथ गिर गए क्या? तो देखो क्या चीज 4 है इस डायग्राम में? The radius. हाँ मतलब ये, ठीक है। अच्छा, ढूंढना क्या है ये चीज? कंस्ट्रक्शन करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। लेट अस मेक अ कंस्ट्रक्शन। डू यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट सेंटर? Yes. व्हाट इज इट? -2, 3. -2, 3. And you know the equation of this line also? Yes. I have been repeatedly saying there is a formula of a distance of a point onto a line. What is the formula? आज के क्लास में ही 10 बार बोल दिया, हर क्लास में भी एक सर बार बोलता हूँ। x(x1 + y(y1 + ax1 यार, तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है ये पॉइंट? डालो यार, ax1 by1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिख लिख के मैं पक गया हूँ। हाँ सर, मतलब सॉल्व ऐसे किया, बस बोलने में थोड़ा मैंने रॉन्ग बोल दिया। हाँ, वेदिका को याद नहीं है तो क्या करूँ अब मैं? बाकी I तुमको याद है just क्या? realized. हाँ, तो ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढो पहले। Yeah, I understood. I'll solve it further. हाँ, what are you unable to get, Siddharth? Sir, I thought you were giving a different question. The No. question which we were solving just No. now. हाँ, So तू just बता try रहा था to- एल्गोरिथम क्या है? Sir, वो midpoint वाला ना? हाँ, Sir, we can find the slope of that line where the center lies and the midpoint lies. यस, उन दोनों को सॉल्व कर लो फिर। And we also know the center point, so we can find the equation of a line. And taking midpoint as a and b, we can substitute the value of x, a हाँ, and b as x and y. And Yeah. distance, we can apply distance formula to get another equation Yes. and just हर बार simplify both of them. सुनना, हर बार सॉल्विंग करके वर्ड को यू डोंट नीड टू एलॉबरेटली एंड टेल कि लेट मी अज्यूम द पॉइंट एज ए बी एंड सब्स्टिट्यूट इन दैट करके, यू कैन जस्ट यूज सॉल्विंग। Okay, sir. वही कर रहा है ना? हाँ, So मतलब मेथड तो करेक्ट है ना? करेक्ट है। हाँ, बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको लग रहा है तू बहुत बड़ा क्वेश्चन कुछ सॉल्यूशन बोल रहा है। तो ढूंढना पॉइंट, इतना टाइम क्यों जा रहा है फिर? सर मेरा पिछला वाला कैलकुलेशन एरर हो गया था, वो करेक्ट कर रहा था इसीलिए। Okay guys,
जल्दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढो फ्रॉम -2, 3 ऑन टू 2x plus y minus 3 is equals to 0. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है -4 plus 3 minus 3 divided by root of 2 square plus 1 square. That is right, Gayatri. You just have to apply modulus. Same with Vedika. Perpendicular distance तो 4/√5 होगा. 4/√5 हुआ. तो वापस से देखो यार, ये ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है. इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे 4 पता चल गया, 4/√5 भी पता चल गया. तो ये तीसरा चीज ढूंढ सकते हो. बट जो तीसरा साइड रहेगा वो आंसर नहीं रहेगा, बल्कि उसका डबल आंसर रहेगा. उसका डबल आंसर रहेगा. जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ अभी. लास्ट क्लास तक हम लोग टेंजेंट के साथ कर रहे थे, अभी सीकेंट किया है, सीकेंट और डिस्कॉर्ड. राइट, एरेस कर रहा हूँ गाइस. किसी का आया क्या साइड? दैट इज करेक्ट गायत्री, करेक्ट आंसर. जल्दी करो वेदिका. नेक्स्ट अक्षय, आर यू देयर? दैट्स राइट वेदिका. अक्षय, ओके. अक्षय को वेटिंग रूम में कर डालता. ओम, आर यू देयर? Okay, now write down next चीज, next concept. इसका आंसर 8/√5. थोड़े लोग जो इंटरेक्ट करे सबने आंसर बताया. बाकी आई होप एवरीबॉडी एल्स आल्सो गॉट इट. लेट अस सी नेक्स्ट वन. सर दिखा ना वो, मतलब उसका एल्गोरिथम में कुछ समझ नहीं आया है, कुछ बोल. क्या तुझे लेंथ 8/√5 नहीं आया क्या? नहीं, लेंथ तो आ गया, वो पॉइंट का बात है. Sir, it should be 16/√5, right? Sir, Oh, 16 no, sorry. sir. Full chord 16/√5. I am sorry. का. 16/√5 is the correct answer. This Vedika and Gayatri. ठीक है, ट्वाइस होगा ना उसका. Yes, understood. ओके, नेक्स्ट वन. फिर वो यार मैं क्वेश्चन इथन को डाउट था ना? No, sir, not me. किसको डाउट था? क्रिश को डाउट था. Who had some doubt, algorithm समझ नहीं आया और something. सर वो सेंटर ढूंढने के लिए. हाँ, सेंटर नहीं, सेंटर सेंटर क्या, वो पॉइंट. हाँ, सेंटर, तो वो पॉइंट किनका इंटरसेक्शन है यार? सर वो जो नीचे की लाइन थे, वो परपेंडिकुलर लाइन, हाँ, दोनों का ये इंटरसेक्शन. लाइन पता है ना? हाँ सर. ये लाइन नहीं ढूंढ सकता क्या? ये पॉइंट नहीं पता भले, लेकिन ये लाइन का स्लोप पता है, तो इसका भी स्लोप पता है ना? और फिर दोनों को हाँ, सॉल्व करना है. स्लोप पॉइंट फॉर्म से ये पॉइंट है ना सेंटर. ओके सर, समझ गया. सर फुट, ये क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर से भी अप्रोच कर सकते हैं क्या? एक ही बात है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी ऐसे वन ऑफ द मेथड इज सॉल्विंग दीस टू लाइंस. Okay, next one. Common tangents to two circles. This is the concept.
Now what the last part of circles and the rest of the circles chapter is based on circle and a circle. We are talking about circle and an another circle. Okay, that is the rest of the chapter. अभी तक हमने मास्टर या अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, सर्किल और पॉइंट किया है, सर्किल और एक्स एक्सिस, सर्किल वाई एक्सिस, फिर सर्किल और लाइन। सर्किल और लाइन में दो अलग अलग थे। सर्किल और लाइन में लाइन टेंजेंट हो सकता है या लाइन कॉर्ड हो सकता है। कॉर्ड होगा तो क्या होगा, आज के क्लास में किया था। टेंजेंट होगा तो क्या हुआ, लास्ट 2 लेक्चर्स हमने वही किया था। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट वन, दो सर्किल्स है। दो सर्किल्स बहुत सारे सिनेरियोस में रह सकते हैं, बहुत सारे सिनेरियोस में रह सकते हैं। इन विच एक सिनेरियो ऐसा है, दोनों सर्किल्स टच भी नहीं कर रहे, कट भी नहीं कर रहे। और कोई सिनेरियो गेस कर सकते हो क्या? Any other scenario that you can guess how the circles will be? Okay. क्या सर? ठीक है, मैं बस बोल रहा था कि दो सर्कल्स कैसे कैसे हो सकते हैं प्लेन में। टच कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, कंसेंट्रिक हो सकते हैं, टच कर सकते हैं, पॉइंट करेक्ट, एक एक करके टच कर सकते हैं। और सर थोड़े एक दूसरे से दूर बिना टच करते हुए। वो तो यही हो गया फर्स्ट सिनेरियो। और फिर एक दूसरे के अंदर कंसेंट्रिक भी हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक भी हो सकते हैं। और कोई सर सिनेरियो, फिर इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं। करेक्ट। और कोई तरीका हो सकता है क्या? नहीं सर, फिर कंसेंट्रिक से थोड़ा डिफरेंट, मतलब सर्कल के अंदर, लेकिन सिर्फ कंसेंट्रिक नहीं होगा। हाँ, कंसेंट्रिक नहीं है बट सर्किल के अंदर एक और सर्किल है। फाइन फाइन, करेक्ट। और कोई सिनेरियो हो सकता है क्या गाइस? नहीं सर, फिर तो सिनेरियो कोई नहीं होगा। ओके, एक और सिनेरियो, दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं लेकिन अंदर टच कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। ओके। नाउ अभी हम लोगों को ये हर सिनेरियो को एनालाइज करना है। दैट इज व्हाट द चैप्टर इज। नाउ हर सिनेरियो को एनालाइज करना है, पहले डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हर सिनेरियो को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो टू डिफरेंशिएट दिस, देयर इज अ सिंपल लैंग्वेज व्हिच विल स्टार्ट यूजिंग। सबसे पहले इसका सेंटर मान लो C1 है, दूसरे का सेंटर C2 है, सेंटर 1 सेंटर 2, एंड लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस D C1 C2, डिस्टेंस बिटवीन देम एज C1 C2, लेट अस कॉल दिस। अच्छा, नाउ पहले का रेडियस R1 ले लेते, दूसरे का रेडियस R2 ले लेंगे। पहले का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2। तो एक एक सिनेरियो को बाइफरकेट करते हैं। ये फर्स्ट सिनेरियो केस 1, लेट अस कॉल इट एज केस 1। ये केस 1 कब होगा? व्हाट इज द रिलेशन between radius 1, radius 2 and the distance between their centers for case 1 to happen? distance is equal to radius 1 of radius 2। नहीं सर, Is नहीं, that वो नहीं correct होंगे। guys? दोनों distances, नहीं सर, दोनों अगर बीच, सर्कल टच कर रहे होते तो। हाँ, लेकिन ये टच नहीं कर रहे, तो कौन बड़ा रहेगा, किससे बड़ा रहेगा? रेडियस 1 इतना ही है, रेडियस 2 वो भी छोटा सा ही पार्ट है, और एक्स्ट्रा भी पार्ट है ना बीच में। So can we say that distance R1 plus R2 से ज्यादा जब भी रहेगा, then this scenario will happen. या सर। Everybody clear with this part? Okay, I hope so. सर इधर D और the diameter की क्या है यहाँ बोर्ड पे, क्या लिखा है? अब बात भी कर रहा था, सुन नहीं रहा था क्या? D किसके बीच का डिस्टेंस है? ओके, ये पूरा मतलब the centers के बीच में। हाँ That one, no? हाँ हाँ हाँ, No, man. ओके। और किसी को डाउट है क्या इसमें? ओके, अभी कैन यू टेल मी, can you see the diagram and start guessing number of common tangents? 2। Yes sir, 2। Number of common tangents. Is that the same answer by everyone? Number of Yes, common sir. direct tangents. common and 2 transverse common tangent। That is right. Common tangent का मतलब जानते हो क्या? यस सर, जो दोनों नाम सर्कल्स में के लिए लिखा एक ही है, हो। दोनों के लिए टेंजेंट होना चाहिए, दोनों के लिए टेंजेंट होना चाहिए। तुम लोग डायग्राम से इमेजिन करो यार थोड़ा, जस्ट पुट इन सम, can you tell me how the two tangents can look like? सर मतलब एक का टॉप टच करेगा, एक का बॉटम टच करेगा वैसे। और सर एक क्रिस क्रॉस करेगा। ऐसे ये हो सकता है, या तो
क्रिस क्रॉस लाइक ही सेइंग, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। समझ आ रहा है कि एवरीवन इन द क्लास? Yes, sir. So नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगे 4, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगे 4। तो लाइक ही सेइंग ये दोनों टेंजेंट्स का ना अलग अलग नाम है। जो ये क्रिस क्रॉस वाला टेंजेंट है, क्रिस क्रॉस वाला टेंजेंट है, उसको बुलाते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स दो रहेंगे और इस वाले को हम टेंजेंट को बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दो रहेंगे। There will be total of 4 common tangents, 2 direct and 2 transverse. Okay. ये सारे नाम समझ आ रहे हैं everybody in the class? सर वापस से ट्रांसफर कौन सा डायरेक्ट कौन सा बताएंगे? अच्छा, अगर टेंजेंट के दोनों सेंटर ऑफ द सर्किल एक ही साइड लाई करेंगे, दोनों सेंटर ऑफ द सर्किल सेम साइड लाई करेंगे तो डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इस केस में देखो ये जो लाइन है सेंटर देखना, एक ऊपर है एक नीचे है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। सेम विद द अदर केस। तो इसको बुलाते हैं टीसीटी या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, कॉपी कर रहे हो ना तुम लोग? आई एम वेटिंग फॉर दैट ओनली। हाँ सर, बस एक सेकंड। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, जस्ट कॉपी कर रहे हो ना? लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब दो टेंजेंट दोनों के पॉइंट जहां जहां पे भी टच कर रहे हैं, इस लेंथ को लेंथ ऑफ डीसीटी बोलते हैं। लेंथ, तो ये दो फॉर्मूले है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, याद रखना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके मीत किससे बात कर रहा है पता नहीं, बट ठीक है। आर यू गाइस डन विद दिस? सर 1 सेकंड सर। ओके, आर यू गाइस डन? हाँ सर, वो बॉटम का हो गया सर। ओके, ये फॉर्मूले भी लिख लो, डीसीटी टीसीटी। सर उन लोग का जो पॉइंट रहेगा वो दोनों डीसीटी और टीसीटी का, तो जो टीसीटी का पॉइंट रहेगा वो दोनों सर्कल के बीच में रहेगा और डीसीटी का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो छोटे सर्कल के वहां पे होगा ना? हाँ करेक्ट, दैट इज परफेक्टली करेक्ट यार, अच्छा बताया तूने। मैं चाहे तो उसको और डिटेल में बताता हूँ। उसने क्या बोला समझा क्या बाकी लोगों को? नहीं सर, मतलब बराबर से सुना नहीं। क्या तुम लोग, दो सर्किल्स है तो दोनों सर्किल्स का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स दोनों सेंटर्स के बीच में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स जो है दोनों सर्किल्स के बीच में इंटरसेक्ट करेंगे। इज दैट फाइन एवरीवन? ठीक है,
और अगर एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए तो यार एक्स्ट्रा डिटेल ऐसा है कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, C1P is to C2P, C1P is to C2P is same as the radius R1 is to R2। तो अगर ये पॉइंट P ढूंढने के लिए कोई बोले तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं C1 C2 के बीच में R1 is to R2 रेशियो में। ये वाला गेस कर सकते हो क्या कौन सा रेशियो रहेगा? सर सेम रेशियो में होगा क्या? सेम रेशियो रहेगा बट दोनों सर साइड ये डी ऐड एक्सटर्नल होगा। डिवीजन हो रहा है। externally Q divides C1 C2 in the ratio R1 is to R2 externally, P divides internally in the ratio R1 is to R2। Do you want to write this down? हाँ सर। Yes, sir. Definitely, अच्छी बात है। अच्छा है, ऐसे डिस्कस करोगे तो नया चीजें निकल के आएंगी। सर वो पॉइंट जो P जो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट का है सर, वहां पे भी टैंजेंट्स के थ्योरम लग रहे हैं ना, और वो एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और मतलब उससे रिलेटेड Yeah. सारे कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं ना। Yes, of course. It is like वही of course हम लोग पार्ट बाय पार्ट किया था अभी तक, अभी 2 सर्कल्स आ गए तो dimensions have increased। भक्ति, आर यू देयर? Yes, sir. मैंने किसको वेटिंग रूम में डाला? अक्षय क्या था, कौन याद है क्या? अक्षय था या ठीक है छोड़ो। ये हो गया सबका लिख के? नहीं सर, अभी तो बस डायग्राम बन रहा है। ओ बहुत स्लो लिखते हो यार तुम लोग। भक्ति, आर यू देयर? भक्ति, भव्या, Yes, sir. आंसर से नहीं दिया आज एक भी। व्हाट अबाउट यू भव्या, आर यू बोथ फॉलोइंग? ओके, कुछ तो एक हेमंत सर का कोई तो वीडियो देखा था जिसमें कुछ तो चोरी पकड़ी गई वगैरह करके, तुम्हारे क्लास में था कि पर्पल हाउस में था? सर चोरी? अच्छा, मतलब ऐसे चीटिंग। हाँ मतलब पर्पल हाउस। हाँ सर क्या चोरी हो रही थी? कुछ नहीं, वो हर क्वेश्चन को गूगल करके आंसर बता रहे थे। हाँ वही, तो सर ने पकड़ लिया। सर ने पकड़ लिया उनको। सर कैसे पकड़ा? सर ने क्वेश्चन क्वेश्चन रॉन्ग में दिया। दिया नहीं उन्होंने, क्वेश्चन में डेटा गूगल कम में दिया। दिया था। हाँ, डेटा इनकम्प्लीट था। बहुत फनी था। इधर है। अभी बाकी सिनेरियोस तुम लोगों को सोचना है, बाकी सिनेरियोस सोचना है। अगर दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं, डी मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, बार बार नहीं बता रहा हूँ, डी मतलब C1 C2 का बीच का डिस्टेंस। तो तुम लोगों को कंडीशन सोचना है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। टेबल टाइप है। पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो से हम टेबल बना रहे। तो तुम लोग सोचोगे क्या? 1 मिनट, इजी है, सोचो जरा। हाँ, एक सिद्धार्थ टेक्स्ट मत कर, थोड़ी देर के बाद डिस्कस कर लेंगे। Okay, I have written all the possible scenarios. I want you guys to think a little bit. I'll ask each one of you, then it will be more fun for me. भक्ति, सेकंड का आंसर बताओगी क्या?
विल डिस्कस इन सम टाइम। वेदिका, तेरा नाम वी से है तो नीचे से होगा, मे बी आई स्टार्ट फ्रॉम डाउन। भक्ति, आर यू देयर? Yes, sir. तो सेकंड सिनेरियो में क्या रिलेशन होना चाहिए रेडियस और दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस? ओके, नहीं दिख रहा है। व्हाट अबाउट यू भव्या? नो नीड क्रिश, आई विल आस्क यू स्लोली, बट मूव ऑन। क्रिश सारे क्वेश्चंस कर ले। धनराज, आर यू देयर? Dhanraj? Okay, since Bhavya is not answering since long, Yes, I'll sir. also put him in waiting Dhanraj room. here. Okay. हाँ धनराज बता सकता है क्या? Oh sorry, 1 minute. सॉरी भक्ति, मैंने वो भव्या को कर रहा था, तेरा आ गया था। हाँ सर। यस, बताना धनराज। सेकंड क्वेश्चन में सिनेरियो क्या रहना चाहिए फॉर दिस टू होल्ड ट्रू? ओके, कैन गायत्री थिंक एंड टेल मी? Sir, number of tangents will be 2. Okay, we'll come back to that in some time. Can you tell me ये D मतलब C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, D और ये R1 R2 में क्या रिलेशन है? ये D का वैल्यू एग्जैक्टली R1 प्लस R2 होगा। पहले वो समझ आ रहा है क्या? दैट इज करेक्ट वेदिका। D का वैल्यू एग्जैक्टली R1 प्लस R2 होगा। ये समझा क्या गायत्री, भक्ति? Yes. क्यों यार, मतलब लॉजिक है, दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं तो दोनों के रेडियस का एडिशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स रहेगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, नाउ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, यस। कैसे कौन बता सकता है? ईथन बता सकता है क्या नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स? Sir, in this one, no, sir. या सेकंड केस only. Sir, 3. How? One going through them, and 2 the. See, one is like this, DCT. one is Yeah. like this, and the third one, गायत्री वेदिका, एक ऐसे भी रहेगा दोनों के बीच में। हाँ सर, वही बोला मैंने। हाँ, मैं how तू पूछा। गायत्री वेदिका नहीं है, तू करेक्ट है। अच्छा, फिर भी। बाकी उन दोनों को समझा ना? नंबर Yes. ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 रहेंगे। कितने डायरेक्ट, कितने ट्रांसफर्स? ये जो पहला टेंजेंट है उसके ये दोनों सर्किल एक ही साइड है, ये दूसरा इसके भी एक ही साइड है, तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है। कितने ट्रांसफर्स रहेंगे? ऑफ कोर्स एक, बीच वाला। ओके, नेक्स्ट। बाकी अभी तुम लोग थोड़ा फास्टली सोच सकते हो क्या? थर्ड केस में सोचो, कंडीशन भी सोचो पहले, कंडीशन, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स करके क्वेश्चन आएंगे, तो तुम्हारा काम है R1 ढूंढो, R2 ढूंढो, D ढूंढो और फिर बताओ आंसर। तो तुम्हें एक 2-5 मिनट का टाइम दूं क्या फॉर यू टू राइट ऑल ऑफ देम, और शुड आई डिस्कस वन आफ्टर द अदर? You discuss one after the other. Okay. Third question. Harsh, are you there? Can you tell me third question? Third case का क्या है scenario? What is the relation between D, R1 and R2? That is correct, Harsh. Can you also guess the relation? Okay. वेदिका बता सकते हैं कि डिस्टेंस रिलेशन क्या है D और R1 R2 में? D बड़ा रहेगा कि R1 प्लस R2 बड़ा रहेगा? R1 plus R2, I guess. R1 प्लस R2 ही रहेगा ना, बिकॉज देखना पास आ गए ना सेंटर्स। जस्ट ये समझ कि प्रीवियस सिनेरियो से अभी का सिनेरियो में क्या चेंज आया, डिस्टेंस घट गया। समझे ना? Yes. ओके, तो D should be less than R1 plus R2 is like almost correct. I'll correct you guys in some time. फोर्थ सिनेरियो सोच सकते हो क्या?
सर थर्ड के नंबर ऑफ टेंजेंट्स और वो सब। हाँ हाँ बताया नहीं मैंने, तू बता सकता है क्या नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे? सर 2। 2 इज करेक्ट। वो दोनों ट्रांसफर्स है कि डायरेक्ट है? सर दोनों के दोनों डीसीटी। दोनों के दोनों डीसीटी इज परफेक्टली करेक्ट। तो टीसीटी है ही नहीं, ऐसा कोई टेंजेंट ही नहीं है जो दोनों सर्किल के ऑपोजिट साइड, दोनों सर्किल ऑपोजिट साइड लाइक करेंगे। इट्स फाइन साक्षी। नाउ फोर्थ वाला सोचा क्या किसी ने? Sir, only one हाँ tangent, सर। one Sir, only one tangent. Yes, that is DCT. correct. Only one common tangent. So one common tangent is only possible. So also can you join the centers of both the circles and think how are they related to the radii? सर अगर सर्कल का रिंग सेंटर जो है बड़े सर्कल का उसको पास नहीं करता तो रेडियस 1 इज स्मॉलर देन डी इज स्मॉलर देन R2। Okay, that is right. Can you think what will be the difference of both the radii? दोनों सेंटर्स को नहीं 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 डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स रेडियस के बराबर हाँ सर नहीं दोनों को होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्टेंस आएगा दोनों के बीच। हाँ वो तुम लोग डायग्राम बनाओ ना, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करो जरा। फिफ्थ सिनेरियो में डी और छोटा हो गया। सर फोर्थ सिनेरियो में डीसीटी एक ही रहेगा ना, मतलब एक डीसीटी और टीसीटी नहीं रहेगा। एक ही हाँ, वो डीसीटी है कि टीसीटी है कैसे पता चला? sir, दोनों मतलब point of contact से वो पास हो रहा है। यस दोनों के ये यस करेक्ट, मतलब दोनों सेंटर्स ऑफ द सर्किल सेम साइड है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नाउ I'll do it fastly now. थर्ड केस में d का वैल्यू R1 प्लस R2 से कम रहेगा, d का वैल्यू R1 प्लस R2 से कम रहेगा। और फोर्थ सिनेरियो में देखो ये बड़ा वाला रेडियस है, छोटा वाला R2 है, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स जो है वो R1 माइनस R2 होगा। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स R1 माइनस R2 होगा। तो इसी सर्किल को छोटे वाले को राइट साइड लेके जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। इनफैक्ट थर्ड वाले ना यार एक्यूरेट कंडीशन ये है वो R1 प्लस R2 से कम रहेगा और R1 माइनस R2 से ज्यादा भी रहेगा, R1 माइनस R2 से ज्यादा भी रहेगा। और ये वाला फिफ्थ सिनेरियो में क्या होगा, डिस्टेंस और कम हो जाएगा, R1 माइनस R2 से भी कम हो जाएगा। और सिक्स्थ वाले में क्या रहेगा, R1 R2 इक्वल हो जाएंगे। नहीं नहीं डिस्टेंस जीरो होगा। R1 R2 कैसे इक्वल है? अच्छा सॉरी सर, सेंटर्स इक्वल हो जाएंगे, रेडियस सेंटर्स इक्वल हो डिफरेंट। जाएंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये आंसर भी सही बताए, थर्ड वाले का नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 है, डीसीटी 2 है और टीसीटी 0 है। फोर्थ वाले में डीसीटी कितने हैं? 1 डीसीटी 1 टीसीटी 0। व्हाट अबाउट फिफ्थ एंड सिक्स्थ? 0 0। सर कोई ट्रांसफर नहीं है, मतलब कोई टेंजेंट नहीं there is है। no common tangent only, there is no common tangent only. Okay, thank you Krish for the video. चलेगा, तुम्हारा ये फटाफट लिख लो, then I'll give you a question, how questions are asked. तुम्हारे क्लास में अरे somebody is in the ऋषभ, किसी ने मैसेज किया, 1 मिनट है, ऋषभ ने किया कि ऋषभ, was that you who text me? No sir. अच्छा अच्छा ओके। भव्या, was that you who text me? हाँ सर। कहाँ चला गया था तू? सर मैं आउट ऑफ टाउन हूँ तो इधर नेटवर्क इश्यू है। अच्छा मुझे लगा लेक्चर के बीच में आउट ऑफ टाउन चला गया। नहीं सर, बहुत देर से तेरा नाम बुला रहे थे। कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ओके ओके ओके, सबका ओके लिख के सारे? सर 6 में R1 माइनस R2 हमें क्या देगा? कुछ नहीं देगा, डी का वैल्यू 0 रहेगा, बस दैट इज एनफ।
बट R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा तो फिर कोइंसिडेंट सर्कल्स हो जाएंगे, R1 और R2 अनइक्वल होना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, let me show you how questions are asked. तुम लोग को यार इतना टफ नहीं है, दो दो सर्कल्स है तो जस्ट मूविंग अलोंग. Let me show you how questions are asked. Find the number of common tangents. Find number of common tangents. To find number of common tangents. Find number of common tangents. To दो क्वेश्चन है, दोनों ट्राई करना. There are two questions on the board, give it a try. You have to find number of common tangents. Do you want help? नहीं सर, इजी है. Fair enough. दोनों सर्कल्स के सेंटर्स ढूंढो, दोनों सर्कल्स के रेडियस ढूंढो, ये तो फंडामेंटल है. सेंटर्स ढूंढो, रेडियस ढूंढो और समझो कि डिस्टेंस कितना है, रेडियस, दोनों रेडियस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो पता है. ठीक है, I'll give you 3 minutes दो क्वेश्चंस के लिए. जिनील या मीत बताओ. ओके जिनील.
ओके, किसी का आंसर नहीं आया? सर मैंने फर्स्ट वाले का भेजा। क्रिश करेक्ट है। Okay, for those who are still unable to do it, I don't know what. So wait for a minute now. Okay, that will be fine. So I'll just come back in 2 minutes and get some water. Niyati is correct. Nice to see your correct answer, Niyati. Happy. Same with, I hope, Raj, Shreyas, Soham, Surya, Rishank. No Gayatri. Okay. Guys, give it an attempt. I'll just come back in 5 minutes. You can take a small break also for 5 minutes if you want. दूसरे वाले का 2-1. पहले वाले का -1 -2, दूसरे वाले का सेंटर है 2 1। तो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस d कितना हुआ? किसी ने ढूंढा d? नहीं वेदिका, d डिस्टेंस किसी ने ढूंढा क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन दीस 2 पॉइंट्स। क्या बात कर रहे हो? इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस नहीं ढूंढ पा रहा है सिद्धार्थ? सर √18 है क्या? √18 करेक्ट है क्या? एनीबॉडी? √18 वैसे करेक्ट है। डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, √9 + 9 √18 आएगा। √18 को 3√2 भी लिख सकता है सिद्धार्थ, ठीक है? ओके सर। 3√2 समझ गया ना? ओके, पहले वाले का रेडियस कितना है? रेडियस 1 सर √5। सर √18 को वैसे ही रहने दो तो इजी पड़ेगा। इजी पड़ेगा, लेट अस, ओके फेयर इनफ। √18 या तो 3√2। ओके, पहला रेडियस है कितना? √5। √5 और दूसरा रेडियस वो भी √5। √5। वो भी √5। √5 प्लस √5 बड़ा है कि 3√2 बड़ा है? ये अभी हमें सोचना चाहिए। तो √5 प्लस √5। कैसे बता? डू यू गाइस नो द वैल्यूज? सर √5 प्लस √5 2√5 अगर 2 को अंदर लेके जाएंगे तो वो टोटल √20 हो जाएगा। तो √20 √18 से दोनों के एडिशन 2√5 है। 2√5 सेम है सर ऐसे भी तो ले सकते हैं, 2 × 2.2 हो जाएगा, मतलब √5 इज अप्रोक्सीमेटली 2.2। 2 × 2.2 is 4.4 करेक्ट। और ये 3 × 1.4 वो चेक कर ले फिर। अगर तो एक्यूरेसी नहीं आ रही तो 2 डेसिमल्स लेना पड़ेगा। ओके सर। तो यहाँ पे लाइक ही सेइंग दिस इज अ वेरी नाइस अप्रोच ही हैज सेड √5 प्लस √5 2√5 वो जो कि √20 है। √20 है इन दोनों के एडिशन, तो इन दोनों के बीच का एडिशन √18 है। इन दोनों सर्कल्स के रेडियस का एडिशन √20 आ रहा है। मतलब दोनों सर्कल्स इस तरीके से है। इन सिंपल वर्ड्स d is more than r1 plus r2, d is more than r1 plus r2। तो आंसर क्या आएगा वेदिका, गायत्री? So d is not more than, I am sorry, d is less than r1 plus r2, d is less than r1 plus r2। इनफैक्ट दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होंगे तो कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे? एनीबॉडी इन द क्लास? 2 that is correct. So the answer is 2. So the answer is 2. Okay, did you guys try the second question or do you need some more time to try it? किसी को सर बस सेकंड वाला करता हम लोग। सेकंड वाला क्या हम लोग करते हैं सर बस। ओके, एक सर्किल है 4, सर मैंने सेकंड वाले का आंसर आपको ऑलरेडी भेज दिया है। 1 = 1 क्या? I don't understand what is 1 नहीं = सर, नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कितने हैं वो भी। क्रिश बोल रहे हैं ना? हाँ सर। गलत है यार आंसर।
दोनों के सेंटर्स ढूंढो, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ढूंढो, पहला काम वो है गाइस, एवरीबॉडी। That is correct, Vedika. Be confident with yourself. हाँ सिद्धार्थ, तो you have to observe the cases and tell me कितने number of tangents is the question. Find the number of tangents. तो तुम लोगों को R1 minus R2 D और R1 plus R2 के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर थोड़ा वो जो अभी मैंने केसेस बनाए तुम्हें देखना पड़ेगा। Can anybody tell me what is R1? पहला रेडियस आया क्या किसी का? 3. 3, thank you. 3 sir. दूसरा रेडियस 5. 5. थैंक्स अ लॉट। डिस्टेंस ढूंढो बिटवीन सेंटर्स, पहला 4,-1 एंड दूसरा है 1,3। डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस ढूंढो गाइस, व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम? Sir, distance is सर 5. उसका 5 हो गया। डिस्टेंस 5 आ गया, यस सर। ओके, डिस्टेंस भी 5 आ गया। तो क्या है तीनों के बीच में रिलेशन? R1 plus R2 greater than D and 1 common tangent. यस, R1 प्लस R2 ज्यादा है, R1 माइनस R2 से भी ज्यादा है D। मतलब ये वैल्यू 5 है, ये 3 प्लस 5 है, फिर 3 माइनस 5 या 5 माइनस 3, डजंट मैटर, मॉडुलस। हाँ मैं वही सर वही पूछ रहा था, तो मॉड कर ले। हाँ मॉड ले ले, मतलब उल्टा लिया, R1 R2 हमने बस। So it cannot be negative ऐसा ना? या Okay okay. सो हाउ मेनी, मतलब हाउ इज द सिनेरियो हियर? सेकंड क्वेश्चन का सिनेरियो क्या है? सिनेरियो क्या है? दोनों रेडियस को ऐड, तुम लोग देख के, तुम लोग ये एक्सप्रेशन देख के सोचो यार, 1 2 3 4 5 6 ऐसे केसेस लिखे ना, कौन सा केस आएगा? सर नंबर 4 नहीं, Sir only नंबर 3। हाँ मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताओगे तो दैट विल, दोनों ऐसे रहेंगे, ये वाला सिनेरियो रहेगा। तो 2 कॉमन टेंजेंट्स, 2 कॉमन टेंजेंट्स। तो वो जो केसेस है और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेट मी गिव यू एन अनदर क्वेश्चन। इज इट बहुत ज्यादा टफ हो रहा है क्या तुम लोगों को ये? नहीं सर, बस वो पहले थोड़ा कुछ मिस किया था इसलिए आई कुडंट फिगर इट आउट था। ठीक है, Now आई विल गिव यू एन अनदर क्वेश्चन, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग कन्विंस्ड कि तुम लोग करेक्टली कर रहे हो। सो एक और क्वेश्चन देता हूँ एंड आई विल गिव यू लाइक 3 minutes टाइम, and I'll add few more questions. Let us make it 3 to 10 minutes. In the same question I'll add. Right on. Find number of common tangents and also their lengths. And also their lengths is where extra hai. You have to find length also. Find the number of common tangents and also their length for the circles. For the circles, x square plus y square
plus 2x minus 8y plus 13 is equals to 0. X square plus y square plus 2x minus 8y plus 13 equals to 0. And x square plus y square minus 8x minus 2y plus 8. Find the number of common tangents and also their lengths. And the two circles have been given. Just put in थोड़ा दिल से करो, दिमाग लगाओ. That is right, Gayatri, but question तो और आगे कुछ और है ना, वहां तक सही है. तुम लोग को पता है ना कि स्पेस बार को थोड़ा लॉन्ग प्रेस करो तो अनम्यूट हो जाता है. हाँ सर, वो नहीं सर, सिर्फ टैप करने पे भी होता है. ओके ओके. नहीं, वो होल्ड करने पे ऐसा वो जितना Okay. होल्ड. मतलब वही तो मोस्ट ऑफ देम दे rather prefer typing but you can just tap the bar and talk to me and leave it. The Vedika, no, गलत है वेदिका. रेडियस इंटीजर्स आते हैं शायद गाइस. क्रिश करेक्ट है. और क्या सर, सॉरी? आगे और क्वेश्चन भी है. गायत्री, रेडियस 1 कितना आया? सर 2 करेक्ट है. रेडियस 2 3 वो भी करेक्ट है. और तूने डिस्टेंस भी करेक्ट भेजा, लेकिन आंसर रॉन्ग भेजा. सोनल तूने आंसर भेजा ना, करेक्ट है यार सोनल, वेरी नाइस. उसके पहले नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी था क्वेश्चन. वेदिका करेक्ट है. गायत्री समझा कि नहीं अभी तक मिस्टेक? यस सर. That is correct, Sonal. Okay, guys, I'll wait for 1 more minute.
That is correct, Krish. Oh no, Gayatri. That is correct, Krish. Okay, I'll just go for it now. बहुत टाइम लग गया. First thing, like Gayatri has said, R1 and R2, what she has said is correct. R1 2 आएगा, R2 3 आएगा. Distance between their centers root 34 आएगा guys, root 34 आएगा. साफ बात है, root 34 जो है 2 + 3 से ज्यादा है. तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस जो है, दोनों रेडियस, पहला रेडियस और दूसरा रेडियस जोड़ के भी नहीं बन रहा है. दोनों डिस्टेंसेस, दोनों सेंटर्स इतने दूर है कि पहला रेडियस और दूसरा रेडियस मिला के भी डिस्टेंस नहीं जम रहा है R1 + R2 के. तो बेसिकली दोनों, बोथ ऑफ देम आर फार अपार्ट. तो सिंस बोथ ऑफ देम आर फार अपार्ट, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर 4. Total tangents, the number of tangents are 4. Number of tangents are 4. The next part of the question was to find the length of the tangent. Length of the tangent का formula है guys, length of the tangent का formula है. Formula देखो और use करो, formula देखो और use करो. Length of direct common tangent का अलग formula है और length of transverse common tangent का अलग है. इस question में दोनों भी ढूंढना है. Direct common tangent का formula है root of d square minus r1 minus r2 का square. दूसरे का d² माइनस r1 + r2 का स्क्वायर. जस्ट फास्टली सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज. तुम लोगों ने d, r1, r2 सब ढूंढ लिया है. चेक करो गायत्री कैसे आया वो वैल्यू. दैट इज करेक्ट वेदिका. वेदिका, सोनल, क्रिश, 3 लोगों का हो गया. बाकी लोग, सिद्धार्थ इतना स्लो हो गए. सेम विथ ईथन सॉरी. It's Ethan only, no? Not ethane, right? Yes, sir, correct. Not ethane. Ethan बोलते Ethan D'Souza. तो Ethan D'Souza है क्या? No, sir, Ethan Dias. Ethan Dias. I had a student, Ethan D'Souza. Acha. It's also a common name. Sir, you're the only sir who actually says my name correctly, and I feel happy about that. Where do you stay? Borivali, sir. Borivali, okay. Yeah. Initially, I was from IC colony, so Okay. where Ethan is a very common name. Oh. I have 2 friends of mine, but they stay near Andheri, who are Oh. Christians. So Acha. one of their friend is also Ethan. उनका नाम तो वो है अब्राहम, जैक्सन अब्राहम. डांसर है वो. हाँ, डांसर है वो. अच्छा. वो टकला हो गया तो उसने नकली बाल लगवाया टू स्टे इन हिज प्रोफेशन. Sir, can you check the chat? गायत्री इज करेक्ट. Ethan is also correct. Ethan, हाँ 5 वाला गलत है. माइनस आएगा बीच में, तूने प्लस कर दिया क्या? Arav is correct. Nice to see your answer. Vedika is correct. Gayatri, root 33 आएगा. Vedika is correct. Nice. Sir, it should be 5 only, sir. Minus ही डाला मैंने बीच में. Root of क्या आएगा? 34 minus 25 ना? 9. Root 9 5 होगा ना? नहीं, wait, 9. No, root wait. 9 is. जल्दी करो guys, others also. Okay. और ऑनेस्टली बताओ, होमवर्क क्या है? तुम लोगों को बहुत ज्यादा लगता है कि कैसा सिचुएशन तुम्हारा? लाइक थोड़ा कम दूं या पुराना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए तो आज होमवर्क नहीं दूं? हाँ सर, एक्चुअली पुराना होमवर्क अभी कर लेते हैं, वो बस व्हाट अबाउट अदर्स? यू गाइस, कैसा है सिचुएशन तुम्हारा? Sir, Yes, I sir. keep trying module, but it's too tough. मॉड्यूल में से जो होमवर्क मैंने आज तक एक बार भी होमवर्क दिया क्या मॉड्यूल से? Yes. हाँ सर. मैंने कैसे फोटोज डाले क्या कुछ? नहीं सर, लास्ट क्लास आपने इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 फुल दिया था और 2 के कुछ क्वेश्चंस थे. ओके. गिव मी अ मिनट.
Let me just check. मॉड्यूल्स तो टफ है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी है मॉड्यूल में. इन चैप्टर 1 फुल होम असाइनमेंट 1 होम असाइनमेंट 2 से कुछ दिया क्या मैंने? यस सर, उसमें से सेलेक्टिव थे. ओके 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 ठीक है. सर मॉड्यूल में बहुत टफ क्वेश्चन, मतलब कुछ अलग ही लगता है, ऐसे सॉल्व नहीं होता है. जो जो दिया है वो करो, दैट विल बी बेटर. मैं तुम्हारे हाउस में होमवर्क पोस्ट करता हूँ. ये ऑप्शनल है, मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा होमवर्क है. और आज जो हमने पढ़ा है वो तुम्हारे इस हफ्ते जो डीपीटी है उसमें भी नहीं आने वाला है. गायत्री अच्छा काम किया है, मैंने फोटो डाला है, वो बहुत सारा होमवर्क है, तुम लोग ट्राई करो जितना हो सके. और क्या, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम है इसीलिए. आर यू गाइस डन विद दिस क्वेश्चन? रूट Yes, 33 sir. रूट 33 और 3 वर द आंसर्स फाइनल. ओके, नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो अभी बस नाम के लिए है, बता देता हूँ. नाम में ही लिखा है एक्चुअली, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स. व्हाट डज इट मीन? कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स मींस, मतलब एज द वर्ड से, दो सर्कल्स है, कॉमन कॉर्ड कब पॉसिबल है? जब दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे, जब दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे. कॉमन कॉर्ड मतलब ये दोनों सर्कल्स, ऐसा कॉर्ड जो दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन है. दिस इज द सर कॉमन सिर्फ कॉर्ड. इंटरसेक्ट नहीं जरूरी है ना, अगर वो सर्कल अंदर भी रहेगा तो भी हो सकता है कॉमन कॉर्ड. मतलब इंटरसेक्ट मतलब ऐसा ऐसा. हाँ सर, इसमें भी कॉमन कॉर्ड तो निकल ही सकता है ना. ओ, कॉर्ड मतलब लाइन सेगमेंट है. ये जो पहला ए बी है, वो ए बी दूसरे सर्कल का कॉर्ड नहीं है, बल्कि सीकेंट है. कॉर्ड लाइन सेगमेंट और लाइन में फर्क समझ में आता है ना? हाँ सर. ऐसे कॉर्ड और सीकेंट में भी समझ में आ रहा है. हाँ सर, सेकेंड मतलब कॉर्ड ही है, लेकिन कॉर्ड से ज्यादा बड़ा रहेगा, मतलब हाँ, सर्कल के भी तो बाहर ये जाएगा जो और ये कॉर्ड जो से वही ए ना बी, जो इट कट थ्रू द हाँ, सर्कल ये जो होगा. ए बी है, वो छोटे वाले के लिए कॉर्ड है कि बड़े वाले के लिए? बड़े वाले के लिए, हाँ, और तो छोटे वाले कॉमन, के लिए हाँ सेकेंड. हाँ हाँ, करेक्ट. तो कॉमन कॉर्ड मतलब दोनों के लिए कॉर्ड है, तो ऐसे सिनेरियो. तो इक्वेशन ऑफ, ये पहला सर्किल एस इज इक्वल टू 0 है, दूसरा सर्किल एस डैश इक्वल टू 0 है. देन इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज s minus s dash equals to 0. मतलब s मतलब it is just a short way to write. S मतलब it's a short way to write. What I intend to say is s मतलब equation of the circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c, जो अपना पूरा सर्किल है. s dash मतलब x square plus y square plus 2g dash x 2f dash y plus c dash. तो कॉमन कॉर्ड होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड. ठीक है, राइट डाउन दिस थियरी, राइट इट डाउन फास्ट. कॉमन कॉर्ड इज जस्ट द सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ सर्कल्स. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए, दैट इज द मेन आइडिया. तो जो आएगा वो इक्वेशन ऑफ ए लाइन आएगा. I'll show you how questions can be asked. सर आप ये रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अपलोड करते हो ना? मैं नहीं अपलोड करता, मैं कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ, तो वहां से अपलोड होते हैं. क्यों, फॉलो नहीं किया क्या आज? नहीं सर, वो कॉमन टेंजेंट्स वाले जो आपने प्रॉपर्टीज लिखवा रहे थे ना, हाँ, सर मेरे सारे आंसर्स आ रहे थे, पर तब भी मैं ये नहीं डिटरमाइन कर पा रहा था कि कितने टेंजेंट्स, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था. तो वो एक बार मुझे वापस से करना होगा. okay, okay. Okay, are you guys done copying this? No sir, once again.
Okay. So do you have any lecture at Andheri? I had this Sunday for for seniors, but not this week. But if you guys have doubts and all, तो अगर तुम लोग आपस में डिस्कस करते हो क्या? Do you guys discuss with each other? No, sir. Okay. Equation of common chord of these two. It's very simple. बोर्ड पे आंसर लिखा है. That is right, Siddharth. Equation of common chord of these two circles. सर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया? मतलब कॉर्ड का इक्वेशन तो सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए ना, x स्क्वायर उसमें कैसे आएगा? x स्क्वायर कैसे आया? सब्ट्रैक्ट किया तो? अरे हाँ सर, x और हाँ अरे वो क्या? सर मतलब सिंगल डिग्री इक्वेशन Sorry, रहता है sir. ना? ये सिंगल डिग्री ही आएगा ना? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं आ रहा है क्या गाइस? सर आ रहा है। नहीं सही है सर सर। आ रहा है सर, आ रहा है. 9y होगा ना वेदिका? Yes, I just wrote it wrong. या दैट्स इट गाइस. इतना ही आंसर है. इतना सिंपल क्वेश्चन है. तुम्हें झट से करना चाहिए. ओके, सेकंड क्वेश्चन. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड. ये क्वेश्चन आई होप किसी और को डाउट नहीं है. फाइंड लेंथ ऑफ common chord. Find length of common chord of the circles. Find length of common chord of the circles. X square plus y square equals to 16 and x square plus y square plus 5x plus 5y minus 36 equals to 0. Find length of common chord of these two circles. पाँच 10 मिनट स्ट्रेच हो जाएगा, चलेगा ना? यस सर। हाँ सर। सर मतलब ये तो बहुत ही इजी है, मतलब खाली फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है हमें और फिर आ जाएगा ना। आंसर बता। Okay, do you guys need any help? The first job is to find the equation of the common chord. Guys, first job is to find the equation of the common chord. दो सर्कल्स है, पहला सर्किल का सेंटर मिल गया क्या? 0,0. That is right. दूसरे का -5/2 -5. -5/2, -5/2. that is correct. कॉमन chord का इक्वेशन मिला क्या? इक्वेशन ऑफ द कॉमन chord. Sir, x plus y plus 4 is equal to 0. Thanks a lot. X plus y
plus 4 is equals to 0. I think there is some error here. Can anybody rectify this? Sir, x plus y minus 2 by 0. Minus 2 is equal to 0. X plus y minus 2 है क्या? Can anybody else confirm? किसी और को कोई तीसरी चीज आ रही है क्या? यहाँ पे कुछ एरर हो रहा है. No, sir, this x plus y plus 4 is right. Okay, सही है सर. करेक्ट है क्या? Okay, कैसे किया जरा एक्सप्लेन करो. सर हाँ सर, करेक्ट है. मैंने थोड़ा कैलकुलेशन में क्या बता रहे हो? कैलकुलेशन में एरर कर दिया. ओके क्रिश. ओके बताओ कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जरा. सर 16 को क्या लेफ्ट साइड लेके आए? 16 को लेफ्ट साइड लेके आया ना? माइनस 16 इक्वल टू 0 लिखा. सब्ट्रैक्ट किया तो x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर भी कैंसिल और माइनस 5x होगा. माइनस 5x. ओके यस सर. या माइनस minus 5y 5x minus 5y minus 20. माइनस 20 क्यों? सर प्लस 20. प्लस 36 होगा. क्या कर रही हो वेदिका? हाँ सर. एक सेकंड. फिर क्या माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. व्हाट आर यू गाइस डूइंग? ठीक है, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 इज द कॉमन कॉर्ड. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अभी क्वेश्चन क्या है? कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन ढूंढना थोड़ी है. क्या ढूंढना है? How should we find the equation of the now what do we need to find? सर लेंथ. लेंथ कैसे मिलेगा? लेंथ मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है इसका लेंथ, दिस शेडेड पार्ट, इसका लेंथ ढूंढना है. इसका लेंथ ढूंढना है. सर ये जो हमने एक सर्कल का लेंथ ढूंढा था वैसे करके खुद भी कर सकते हैं. 100%. 100%. ये देखो पहले सर्किल का पर्सपेक्टिव देखो. पहले सर्किल का सेंटर कितना है? और 0,0. रेडियस कितना है पहले सर्किल का? 4. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है. अभी 0 0 और ये लाइन हमें पता चल गया. अभी x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. ये लाइन पता चल गया, सेंटर पता चल गया, तो क्या ढूंढ सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस p ढूंढ सकते हैं. p ढूंढने के बाद तुम्हें प्रोसेस समझ आ रहा है ना क्या करना चाहिए? Yes sir. Okay, so this is for you to solve at home. Since the time is up, I'll wind up the class, but you guys can do this. Answer बताओ या next class में करें? करो, next class में डिस्कस करते हैं. 5 मिनट बैठ के करो. ठीक है सर 1 मिनट में हो जाएगा. मैं बस अभी आंसर बता कर देता सकते हो तो हूँ. हाँ वही अभी भी कर सकते हो तो ठीक. मैं तो वही चाहता हूँ, बट 1 मिनट होता नहीं है. चलो 1 मिनट देता हूँ. गो फॉर इट. सर 4√2 है क्या? That's right, Siddharth. Others perpendicular distance बताओ पहले. सर आंसर क्या है? 2√2 है कि 4√2? तुझे क्या आ रहा है? 2√2 आ रहा है सर. कॉर्ड का लेंथ उसका डबल नहीं होगा? नहीं सर को मैंने p का वैल्यू निकाला है. मैंने assumption करके किया तो शायद से wrong हो. यार ये क्या बात है? तुम लोग क्यों अज्यूम करने लग जाते हो? 2√2 सर 4√2 ही होगा श्योर. p कितना आया? p कितना आया? 2√2. ना, हाँ p करेक्ट है. सॉरी, p is 2√2. p is 2√2. तो ये डिस्टेंस मिला क्या पाइथागोरस से? √8 that is 2√2. रूट ऑफ 16 माइनस 2√2 का स्क्वायर.
पता नहीं 1 मिनट बोल दिया, 2 मिनट हो गए, पता नहीं क्या कर रहे हो। किसी को हेल्प चाहिए क्या सॉल्विंग में? पी पी कैसे ढूंढ रहे, समझ आ रहा है ना? 0 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस लाइन में, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो 0 plus 0 minus 4 divided by root of 1 plus 1. So you'll get 4 by root 2. 4 by root 2 is same as 2 into root 2. 4 by root 2 is same as 2 root 2. हाँ सर 4 रूट 2 मिल गया। पाइथागोरस थ्योरम करें तो ये भी 2 root 2 ही आ जाएगा। हाँ सर मैं अभी किया, वही मैं कंफ्यूज हुआ था जब उसमें 2 रूट 2। तो उसका डबल होगा आंसर, फाइनल आंसर है 4 root 2। फाइनल आंसर इज 4 root 2। चलेगा गाइस, विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर दिस टेस्ट। कामली सोच के करो, टेस्ट इज नॉट वेरी टफ, तुम लोग कामली सोच के करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय।